اچھا، ایک سوال ہے جو شاید ہر اس شخص کو پریشان کرتا ہے جس کے بینک اکاؤنٹ میں تھوڑے بہت پیسے پڑے ہیں۔ ہم ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی ہر سال بڑھ رہی ہے اور بینک میں رکھے پیسے کی اس کی قیمت کم ہو رہی ہے۔ جی بالکل۔ تو کیا اس پیسے کو بڑھانے کا کوئی ایسا طریقہ ہے جس کے لیے ہمیں اسٹاک مارکیٹ کا ماہر بننے کی ضرورت نہ پڑے؟ یہ صرف ایک سوال نہیں بلکہ آج کے دور کی یوں سمجھیں سب سے بڑی مالی حقیقت ہے۔ صحیح۔ بینک میں پیسہ رکھنا محفوظ ضرور لگتا ہے، لیکن یہ ایک ایسے ٹائر کی طرح ہے جس میں سے آہستہ آہستہ ہوا نکل رہی ہو۔ واہ، کیا مثال ہے! آپ کو لگتا ہے کہ ٹائر موجود ہے لیکن وہ آپ کو آگے نہیں لے جا سکتا، اور ہاں، اس کا جواب واقعی موجود ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی راستے کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ایک عام شخص کے بینک اکاؤنٹ میں پڑے پیسوں کو مالی آزادی کے ایک ممکنہ سفر پر کیسے لے جایا جا سکتا ہے۔ اور ہمارا پہلا پڑاؤ یہی ہوگا کہ اس سفر کے لیے گاڑی کون سی بہترین ہے۔ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتی ہیں۔ بالکل۔ بہترین۔ تو پھر چلیں اس کو کھولتے ہیں۔ یہ میوچول فنڈ آخر ہے کیا؟ سننے میں تو یہ کوئی بہت پیچیدہ مالیاتی اصطلاح لگتی ہے۔ دیکھیں، اسے بالکل سادہ رکھتے ہیں۔ میوچل فنڈ بہت سے لوگوں سے جمع کیے گئے پیسوں کا ایک بڑا تالاب ہے، ایک پول۔ تالاب؟ جی، آپ نے، میں نے، ہمارے دوستوں نے، سب نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس تالاب میں پیسے ڈالے۔ کسی نے 10,000، کسی نے 50,000۔ ٹھیک ہے، یہ تو کچھ محلے کی کمیٹی جیسا لگ رہا ہے جہاں سب لوگ پیسے جمع کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، آپ نے بالکل صحیح پکڑا، لیکن ایک بنیادی فرق کے ساتھ۔ اچھا، وہ کیا؟ کمیٹی کا مقصد باری آنے پر جمع شدہ رقم لینا ہوتا ہے۔ میوچل فنڈ کا مقصد اس تالاب میں موجود پیسوں کو بڑھانا ہوتا ہے۔ اچھا، تو اسے بڑھائے گا کون؟ یہاں وہ کردار آتا ہے جو اس پورے نظام کی روح ہے، فنڈ مینیجر۔ فنڈ مینیجر؟ جی، یہ ایک پیشہ ور ماہر ہوتا ہے جس کا کام یہی ہے کہ وہ اس جمع شدہ رقم کو صحیح جگہوں پر لگائے تاکہ اس میں اضافہ ہو۔ ایک منٹ، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم اپنا سارا پیسہ ایک شخص یعنی فنڈ مینیجر کے حوالے کر رہے ہیں۔ اگر اس نے غلط فیصلے کیے تو یہ تو ایک ہی جگہ سارا انڈا رکھنے سے بھی زیادہ خطرناک لگ رہا ہے۔ آپ نے بہت اہم نکتہ اٹھایا، اور یہی وہ پہلا شک ہے جو کسی بھی نئے سرمایہ کار کے ذہن میں آتا ہے۔ جی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اوول تو فنڈ مینیجر اکیلا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک پوری ریسرچ ٹیم ہوتی ہے۔ اچھا۔ دوم، قانونی طور پر وہ پابند ہیں کہ پیسہ کسی ایک جگہ نہیں لگا سکتے، اسے ڈائیورسیفائی کرنا یعنی پھیلانا لازمی ہے۔ اچھا، تو رسک کو پھیلایا جاتا ہے۔ جی، آپ کے پیسے کسی ایک کمپنی کے شیئر میں نہیں بلکہ 30، 40 یا 50 مختلف کمپنیوں، سرکاری بانڈز اور دیگر اثاثوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ مطلب اگر ایک دو کمپنیاں برا بھی کریں تو باقی سنبھال لیتی ہیں؟ بالکل، فنڈ مینیجر کا کام ہی رسک کا انتظام کرنا ہے۔ وہ آپ سے یہ بوجھ لے لیتا ہے۔ صحیح۔ آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ کون سا شیئر خریدنا ہے، کب خریدنا ہے اور کب بیچنا ہے۔ یہ تو واقعی دلچسپ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تمام میوچل فنڈز ایک جیسے نہیں ہوتے ہوں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اگر فنڈ مینیجر مختلف جگہوں پر پیسہ لگا رہا ہے تو ان جگہوں کی بنیاد پر فنڈز کی قسمیں بھی تو مختلف ہوں گی۔ آپ بالکل صحیح سمت میں جا رہی ہیں۔ ہر فنڈ کا ایک مخصوص مقصد اور کردار ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کرکٹ ٹیم میں ہر کھلاڑی کا۔ ٹھیک ہے۔ کوئی تیز کھیلنے والا بلے باز ہے تو کوئی دفاعی۔ بنیادی طور پر رسک اور منافع کی بنیاد پر ان کی 4 بڑی قسمیں ہیں۔ چلیں ان کھلاڑیوں سے ملتے ہیں۔ سب سے مشہور اور جارحانہ کھلاڑی کون سا ہے؟ سب سے مشہور اور جارحانہ کھلاڑی ہے ایکویٹی فنڈز۔ ایکویٹی فنڈز؟ جی، یہ وہ فنڈز ہیں جن کا سارا یا زیادہ تر پیسہ براہ راست سٹاک مارکیٹ میں یعنی مختلف کمپنیوں کے شیئرز میں لگایا جاتا ہے۔ یعنی یہ T20 کے بلے باز کی طرح ہوئے؟ بالکل وہی، چھکا بھی لگا سکتے ہیں اور پہلی ہی گیند پر آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر سٹاک مارکیٹ اوپر جائے گی تو یہ فنڈ بھی تیزی سے اوپر جائے گا، اور اگر نیچے آئی تو یہ بھی تیزی سے گرے گا۔ اسی لیے اس میں رسک سب سے زیادہ ہے، لیکن طویل مدت میں سب سے زیادہ منافع کمانے کی صلاحیت بھی اسی میں ہے۔ ماضی میں اچھے ایکویٹی فنڈز نے سالانہ 15 سے 25% تک کا منافع بھی دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ان کے لیے ہے جو تھوڑا خطرہ مول لینے کو تیار ہے، لیکن ہر کوئی رات کو سکون سے سونا چاہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کون سا آپشن ہے؟ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، اور اسی لیے فنڈز کی ایک دوسری قسم موجود ہے جو استحکام اور حفاظت کو ترجیح دیتی ہے۔ اچھا،
उन्हें डेट फंड्स कहते हैं। डेट फंड्स यानी टेस्ट मैच के दिफाई बल्लेबाज? क्या बात है, बिल्कुल वही, जो विकेट पर टिके रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता स्कोर बढ़ाते हैं। उनमें पैसा स्टॉक मार्केट के बजाय हुकूमती बॉन्ड्स, टी बिल्स और बड़ी कंपनियों के सुकूक जैसी महफूज जगहों पर लगाया जाता है। तो इसका मुनाफा बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा ही होगा ना? फिर कोई डेट फंड क्यों ले? नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। डेट फंड्स का मुनाफा आमतौर पर बैंक एफडी से थोड़ा बेहतर होता है। अच्छा। अगर बैंक आपको 12% दे रहा है, तो एक अच्छा डेट फंड 13 से 15% तक दे सकता है, और उसमें आपका पैसा लॉक भी नहीं होता। ये तो एक मुतवाज़िन ऑप्शन लग रहा है। लेकिन क्या कोई ऐसा दरमियानी रास्ता है जिसमें इक्विटी की रफ्तार भी हो और डेट का इस्तेहकाम भी? जी बिल्कुल, और शायद नए लोगों के लिए वो बेहतरीन शुरुआत है। उन्हें हाइब्रिड या बैलेंस्ड फंड्स कहते हैं। हाइब्रिड फंड्स यानी ऑलराउंडर? बिल्कुल, फंड मैनेजर कुछ पैसा शेयर्स में लगाता है ताकि मुनाफा तेजी से बढ़े, और कुछ पैसा बॉन्ड्स में लगाता है ताकि अगर मार्केट गिरे तो नुकसान कम हो। तो ये दरमियाना रिस्क और दरमियाना मुनाफा वाला मामला हो गया। ये तो नए सरमायाकारों के लिए बहुत पुरकशिश लगता है। इसीलिए इन्हें अक्सर नए शुरू करने वालों यानी बिगिनर्स के लिए सबसे ज्यादा तजवीज़ किया जाता है। और वो चौथी किस्म कौन सी है? चौथी किस्म है मनी मार्केट फंड्स। ये विकेट कीपर की तरह हैं, जिनका बुनियादी काम हिफाजत है। हिफाजत? जी, ये बहुत ही कम मुद्दत यानी चंद दिनों या महीनों की सरमायाकारी के लिए होते हैं। इनका मकसद पैसे को महफूज रखना और बैंक के सेविंग अकाउंट से थोड़ा बेहतर मुनाफा देना है। तो ये इमरजेंसी फंड रखने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है? बेहतरीन जगह है, पैसा महफूज भी रहे और जरूरत पड़ने पर फौरन दस्तयाब भी हो। जबरदस्त। तो हमारे पास एक जारहाना इक्विटी, एक दिफाई डेट, एक ऑलराउंडर हाइब्रिड और एक महफूज मनी मार्केट फंड है। ये तकसीम तो बहुत वाज़ेह हो गई। जी, लेकिन अब सबसे बड़ा अमली सवाल, क्या इस खेल में शामिल होने के लिए जेब भरी होनी चाहिए? क्या लाखों रुपए की जरूरत है? नहीं, और शायद यही म्यूचुअल फंड्स की सबसे इनकलाबी बात है। आप बहुत थोड़ी रकम, यहाँ तक कि चंद हजार रुपए महीना से भी शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा। उसके लिए एक बहुत ही ताकतवर तरीका है, जिसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या एसआईपी कहते हैं। एक मिनट, SIP, ये लफ्ज़ तो आजकल हर जगह है। हर बैंक, हर मोबाइल ऐप यही बेचने की कोशिश कर रही है। क्या ये वाकई कोई जादुई छड़ी है? ये मार्केटिंग भी है, लेकिन इसके पीछे का उसूल वाकई जादुई है। वो कैसे? एसआईपी का मतलब है कि आप हर महीने एक तयशुदा रकम, चाहे वो 5,000 हो या 10,000, अपने फंड में लगाते रहते हैं। ठीक है, जैसे बिजली का बिल देते हैं। बिल्कुल, इसका असल जादू रियाजी में नहीं, नफ्सियात में है। नफ्सियात में? देखिए, आम सरमायाकार की सबसे बड़ी नाकामी की वजह मार्केट को टाइम करने की कोशिश है। अच्छा। वो लालच में आकर तब खरीदता है जब मार्केट उरूज पर हो, और खौफ में आकर तब बेचता है जब मार्केट गिर चुकी हो। सही। सूस रकम लगाते रहते हैं। तो जज्बात की बुनियाद पर फैसले करने से बच जाते हैं। जी, आप असल में अपनी आदतों पर सरमायाकारी कर रहे होते हैं, ना कि मार्केट की खबरों पर। ये तो एक बिल्कुल नया जाविया है। और रियाजी के लिहाज से इसका क्या फायदा है? रियाजी के लिहाज से इसका सबसे बड़ा फायदा कंपाउंडिंग की ताकत है, जिसे आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। कंपाउंडिंग यानी मुनाफे पर मुनाफा? जी, आपके मुनाफे पर भी मुनाफा बनना शुरू हो जाता है। एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। फर्ज करें कोई शख्स हर महीने 10,000 रुपए की सिप करता है 10 साल के लिए। ठीक है, तो 10 साल में उसने कुल 12 लाख रुपए जमा किए। बिल्कुल। अब अगर हम फर्ज करें कि उसे औसतन 15% सालाना मुनाफा मिला, जो कि एक अच्छे फंड में तवील मुद्दत में बिल्कुल मुमकिन है, तो आपके ख्याल में 10 साल बाद उसकी 12 लाख की सरमायाकारी की कीमत क्या होगी? शायद 18-20 लाख। ये रकम मुमकिना तौर पे 28 से 30 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। क्या 12 लाख के 30 लाख? जी, आपकी असल सरमायाकारी 12 लाख है, लेकिन मुनाफा 16 से 18 लाख है। और अगर यही सरमायाकारी 20 साल तक जारी रहे तो 24 लाख की कुल सरमायाकारी 1 करोड़ से भी ज्यादा बन सकती है। ये है कंपाउंडिंग की ताकत। ये वाकई हैरानकुन है। ये समझने के बाद मेरा अगला सवाल ये है कि अगर ये इतना ही अच्छा है तो लोग फिर बराह रास्त स्टॉक्स क्यों खरीदते हैं? ये एक अहम नुक्ता है। इसे यूं समझें कि म्यूचुअल फंड एक तैयारशुदा शेफ की बनाई हुई बिरयानी की प्लेट है। हाँ, जबकि बराह रास्त स्टॉक्स खरीदना खुद चावल, गोश्त, मसाले खरीद कर बिरयानी बनाने जैसा है। ठीक है।
दोनों से पेट भर सकता है, लेकिन एक में महारत, वक्त और मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। 3 बुनियादी फर्क हैं: इल्म, रिस्क और वक्त। ठीक है, पहले इल्म की बात करते हैं। म्यूचुअल फंड के लिए आपको बुनियादी समझ-बूझ चाहिए, बाकी काम फंड मैनेजर का है। स्टॉक्स के लिए आपको कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ना, उनके मुस्तकबिल के मंसूबों को समझना, यानी पूरा तज्जिया करना आना चाहिए। जी, जिसके लिए सालों का इल्म और तजर्बा दरकार है। और रिस्क के लिहाज से? म्यूचुअल फंड में रिस्क तकसीम हो जाता है। आपका पैसा 50 मुख्तलिफ कंपनियों में लगा है। अगर 1-2 डूब भी जाएं तो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। और स्टॉक्स में? स्टॉक्स में अगर आपने 4 या 5 कंपनियों में पैसा लगाया और उनमें से एक भी मुश्किल में आ गई तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। और वक्त? आजकल वक्त किसके पास है? यही तो बात है। म्यूचुअल फंड में एक बार एसआईपी शुरू कर दी तो आपको रोज-रोज देखने की जरूरत नहीं। स्टॉक्स में आपको मुसलसल मार्केट पर नजर रखनी पड़ती है। ये खुद एक पार्ट टाइम नौकरी है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि म्यूचुअल फंड्स में कोई रिस्क बिल्कुल नहीं होता। वो जुमला म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स तो हर जगह लिखा होता है। बिल्कुल, और इस जुमले को संजीदगी से लेना चाहिए। जहां भी मार्केट से मुंसलिक मुनाफा है, वहां रिस्क जरूर है। अगर पूरी मईशत ही सुस्त हो जाए और स्टॉक मार्केट गिर जाए तो आपके फंड की कीमत भी गिरेगी। लेकिन समझने की बात यह है कि ये गिरावट आर्जी होती है और तवील मुद्दत में मार्केटें वापस ऊपर आती हैं। हमेशा सब्र करने वाला सरमायाकार ही कामयाब होता है। और यही सब्र शायद सबसे मुश्किल काम है, खास तौर पर नए सरमायाकारों के लिए। वो कौन सी आम गलतियां हैं जो उन्हें खेल से बाहर कर देती हैं? नए लोग अक्सर चंद नफ्सियाती जाल में फंस जाते हैं। सबसे पहली गलती है कम मुद्दती सोच, शॉर्ट टर्म थिंकिंग। यानी वो इसे लॉटरी का टिकट समझते हैं। बिल्कुल, कि आज पैसा लगाया और 6 महीने में दुगना हो जाएगा। जब ऐसा नहीं होता तो वो मायूस होकर छोड़ देते हैं। और दूसरी गलती जो शायद सबसे ज्यादा नुकसानदेह है, वो है घबराकर बेच देना, पैनिक सेलिंग। अच्छा, मुझे याद है 2020 में जब कोरोना की वजह से मार्केट क्रैश हुई तो बहुत से लोगों ने घबराकर अपनी सालों की सरमायाकारी बहुत बड़े नुकसान में बेच दी। और आज वो पछताते होंगे। बहुत ज्यादा, क्योंकि जिन्होंने सब्र किया और अपनी एसआईपी जारी रखी, उनका पोर्टफोलियो ना सिर्फ वापस अपनी जगह पर आया बल्कि आज दोगुना हो चुका है। ये तो इंसानी फितरत के खिलाफ जाने वाली बात है। कोई और गलती जिससे बचना चाहिए? जी, एक और गलती है सिर्फ पिछले साल का मुनाफा देखकर फंड खरीद लेना। अच्छा, अगर किसी फंड ने पिछले साल 50% मुनाफा दिया है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो हर साल ऐसा करेगा। उसके पीछे छुपे रिस्क को समझना जरूरी है। और आखिर में फंड के इखराजात, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, उसे नजरअंदाज करना। ये वो फीस है जो फंड हाउस आपके पैसे संभालने के लिए लेता है। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई आज ये गुफ्तगू सुनकर अपना पहला कदम उठाना चाहता है तो उसके लिए बेहतरीन हिकमत अमली क्या होगी? एक वाज़े एक्शन प्लान। बेहतरीन और सादा तरीन हिकमत अमली ये है: अव्वल, एक हाइब्रिड या बैलेंस्ड फंड से आगाज करें। ठीक है, ऑलराउंडर से। दोम, हमेशा एसआईपी का तरीका इस्तेमाल करें। कभी भी अपनी सारी जमा पूंजी एक साथ मत लगाएं। और तीसरा, और सोम, अपने जहन में कम से कम 5 से 10 साल का हदफ रखें। ये कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं, बल्कि सब्र और नज़्मो ज़ब्त के साथ दौलत बनाने का एक साबित शुदा अमल है। बहुत खूब। आज के गुफ्तगू का अगर मैं खुलासा करूं तो ये कह सकती हूँ कि म्यूचुअल फंड्स खास तौर पर एसआईपी के जरिए तवील मुद्दती दौलत बनाने का एक ताकतवर, काबिल रिसाई और कम दबाव वाला तरीका है। बिल्कुल सही। छोटी रकम से आगाज करना, जज्बात को काबू में रखना और फिर सब्र से कंपाउंडिंग के जादू को अपना काम करने देना, यही इस खेल का असल राज है। आपने बिल्कुल सही खुलासा किया। ये एक मुनज़्ज़म तरीका है अपनी माली तकदीर को अपने हाथ में लेने का। जाते जाते हमारे सामीन के लिए कोई आखिरी सोच जिस पर वो इस गुफ्तगू के बाद गौर कर सकें? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आज की गुफ्तगू के बाद सिर्फ ये ना सोचें कि कौन सा फंड बेहतर है या किस में कितना मुनाफा है। बिल्कुल। बल्कि एक कदम पीछे हटकर ये सोचें कि आपके लिए तवील मुद्दती का असल मतलब क्या है। सही। आपका 5 साला, 10 साला या 20 साला माली हदफ क्या है। सही। आज की एक छोटी सी महाना सरमायाकारी सिर्फ पैसों का इजाफा नहीं है। ये आपके बच्चों की बेहतर तालीम हो सकती है, आपकी पुरसुकून रिटायरमेंट हो सकती है, या अपना घर खरीदने का ख्वाब हो सकता है। बिल्कुल। इस तब्दीली के बारे में सोचें, सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं, क्योंकि आप सिर्फ पैसा नहीं, आप अपना मुस्तकबिल और अपने ख्वाबों को वक्त दे रहे हैं। Like and subscribe.